Morning to all of you. So in the last class we have completed a topic, that is importance or the relevance of the infrastructure, in which we have studied what are the main importance of the infrastructure for the overall development of the growth as well as the growth of the country. Okay, so in which we have studied the infrastructure promotes the development, infrastructure develops agriculture, infrastructure facilitates smooth functioning of the economy, infrastructure enhance the quality of the life, infrastructure expand market size, infrastructure promotes capital formation and investment, infrastructure facilitate outsourcing, as well as the last one is infrastructure promotes the interdependence and the linkages in the production. Okay, so in the last class we have also studied the topic, that is what is the state of infrastructure in India. So we have discussed that the only in the traditionally only the government has sole responsibility of the developing of the countries through the infrastructure, but it was inadequate because of the there were too much growing population in India, and according to that demand of the infrastructure facilities or the development could not be achieved. So now the private sector by itself or by with the joint partnership with the government, they can also play very important role in the development of the infrastructure. So when we talk about the about 90% of the rural household are totally depend upon the using the biofuels for the cooking of the cooking, as well as they can also use the crop residues, cow dung and the fuel wood. So they have to walk long distance to bring the fuel, water and other basic needs. They have to walk uh, too much kilometers long distance they have to cover for to bring their basic facilities of the needs. For example, in rural India only 56% of the household have the electricity connection, and 43 of them are still use the kerosene for the light purpose. Okay, they have to उनको क्या करना पड़ता था, they have to use the different kind of lamp as well as the different kind of diyas. Okay, so water supply is also very limited to the limited place. Tap water availability is limited only to the 24% of the rural household, जो 24% rural household को ही क्या था, tap water availability थी, and around 76% of the rural household is still using the open sources of the water like wells, ponds, lakes, river, etc. Okay, so access to improved sanitation in rural area is also only just 20%. ठीक है, improved sanitation की facility भी बस 20% ही people को थी. As well as we can also we were seeing this data also. Okay, so the above table shows that though it is widely understood that infrastructure is the foundation of the development. Okay, इतना पढ़ने के बाद हम लोग ये जान गए कि क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या है, इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ द डेवलपमेंट. मतलब अगर हमको कंट्री में डेवलपमेंट करना है तो उसका ये बेसिक फैसिलिटीज़ है. ठीक है, फाउंडेशन है, मतलब हम उसके थ्रू फाउंड करते हैं कि अगर हमको डेवलपमेंट करना है सो देयर शुड बी अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. सो इंडिया इन्वेस्टेड ओनली 34% ऑफ GDP ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, इंडिया क्या करती है, बस GDP में अपना जो GDP का कैलकुलेट करती है बजट, तो उसमें 34% बस GDP ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो इन्वेस्ट करती है, विच इज़ फार बिलो डैट ऑफ द चाइना एंड इंडोनेशिया, जो बहुत ही फार बिलो है. मीन्स अभी आप ये देखो कि इसमें क्या है, इंडिया क्या है 34% करी है, एंड चाइना अराउंड 46%, एंड हांगकॉन्ग 24%, इंडोनेशिया 35%. Okay, so these all are the India is only 34% of GDP is invested on the infrastructure. Access to the improved water sources, sanitation is far below than the country. ठीक है, जो
प्रॉपर सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ है, वाटर सोर्स की फैसिलिटीज़ है, वो भी क्या है बहुत प्रॉपर इंडिया में नहीं है फैसिलिटीज़। शेयर ऑफ पावर एंड टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ लोअर एज़ कम्पेरिजन टू मैनी अदर कंट्री। ठीक है, अगर हम लोग पावर और टेली कम्युनिकेशन का भी आप शेयर्स देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारी जो फैसिलिटीज़ है वो भी अदर कंट्री के कंपैरेटिवली इंडिया में बहुत ही कम है। ओके, सो सम इकोनॉमिक्स have projected that India will become the third biggest economy in the world a few decades from now. Okay, for that to happen, India will have to boost its infrastructure investment. Okay, कुछ इकोनॉमिक्स हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक्स क्या करते हैं, अपने ओपिनियंस रेगुलर इंटरवल पे दे हैव गिवन, वो देते हैं। तो इसमें कुछ इकोनॉमिक्स ने ये भी बोला था कि इंडिया क्या है, इंडिया विल बिकम थर्ड बिगेस्ट इकॉनमी। इंडिया क्या है, थर्ड बिगेस्ट इकॉनमी बन जाएगी इन दी वर्ल्ड फ्यू डिकेड्स फ्रॉम नाउ। जब भी उन्होंने दिया था, उन्होंने अपनी बातें रखी थी, तो यहाँ पे ये बोला था कि कुछ मतलब डिकेड्स में, मतलब 10 ईयर्स के उसमें क्या है कि कुछ डिकेड में क्या होगा, इंडिया क्या हो जाएगी, थर्ड बिगेस्ट इकॉनमी हो जाएगी। फॉर दैट टू हैपन, इसके लिए क्या करना होगा, इंडिया विल हैव टू बूस्ट इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बूस्ट करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पे। इन एनी कंट्री एज द इनकम राइजेस कंपोजिशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट चेंज सिग्निफिकेंटली। ठीक है, जैसे किसी भी कंट्री में क्या होता है कि जैसे ही इनकम राइज होती है तो कंपोजिशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट चेंज सिग्निफिकेंटली। अब लोगों के पास अगर इनकम ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर लोगों के पास इनकम होगा तो लोग कहीं ना कहीं इसको इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होगी तभी वो लोग क्या कर पाएंगे, एग्जैक्ट प्लेस पे वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। फॉर लो इनकम कंट्रीज़ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लाइक इरीगेशन, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड आर मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जो कंट्रीज़ क्या हैं, लो इनकम कंट्रीज़ है, ठीक है, जहाँ पे इनकम कंट्रीज़ की लो होती हैं, वहाँ पे जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज हैं जैसे इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, पावर, ये सारी क्या होती हैं, ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। एज इकोनॉमीज़ मैच्योर एंड मोस्ट ऑफ देयर बेसिक कंजप्शन डिमांड्स आर मेट, द शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर इकॉनमी इन श्रिंक एंड मोर सर्विस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, जैसी हमारी इकोनॉमीज़ जो है कि हम कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं थ्रू विच वी कैन अर्न मोर द प्रॉफिट एंड द मोस्ट ऑफ देयर कंजप्शन डिमांड आर मेट। जैसी हमारी कंजप्शन, देखिए सबसे पहले कोई भी कंट्री किस पे डिपेंड होती है, पहले वो ये सोचती है कि जितना पॉपुलेशन है पहले उनकी कंजप्शन की रिक्वायरमेंट पूरी फुलफ़िल हो जाए, आफ्टर डैट वो लोग क्या सोचते हैं कि हम और इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसी ये सारी बेसिक कंजप्शन डिमांड लोगों की फुलफ़िल हो जाती है, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकॉनमी श्रिंक हो जाती है। तो वैसे ही जो एग्रीकल्चर का शेयर है वो क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, कम हो जाता है, एंड मोर सर्विस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ रिक्वायर्ड। और फिर क्या है, सर्विस रिलेटेड मीन्स कम्युनिकेशन हो गया आपका, बैंकिंग, इंश्योरेंस, तो जो भी सर्विस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। दिस इज़ वाई द शेयर ऑफ पावर एंड टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ग्रेटर इन दी हाई इनकम कंट्री। इसलिए क्या होता है कि जो पावर और टेलीकम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हाई इनकम कंट्रीज़ के लिए इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। जो लो इनकम कंट्रीज़ है वो क्या है, वो तो यही पहले सोचते हैं ना कि उनकी बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट है, कंजप्शन की जो भी रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, वो उसको फुलफ़िल हो जाए। वो इतना ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे नहीं सोच पाते हैं। ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विस सेक्टर से रिलेटेड वही सारे लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा फोकस कर पाते हैं जिसके पास हाई इनकम ग्रुप है। मतलब हाई इनकम कंट्रीज़ में ही लोग ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं, सर्विस सेक्टर पे। ओके, सो द डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड। ठीक है, कि जो भी हाथों हाथ जाता है, कैसे कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एक साथ ही चलता है। हम ये नहीं कह सकते कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के बिना ही हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई रोल नहीं है, ये भी हम नहीं कह सकते। दोनों का क्या है, दोनों को हम एक साथ यूज़ करते हैं। अगर हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है सो वी नीड टू बी
प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अगर हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होंगी सो वी कैन गो थ्रू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तभी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो एग्रीकल्चर डिपेंड्स अपॉन द कंसिडरेबल एक्सटेंट ऑन द एडिक्वेट एक्सपेंशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द इरीगेशन फैसिलिटी। देखिए एग्रीकल्चर टोटली किस पे डिपेंड है, इस पे है कि उसे प्रॉपर, और अगर उसको एक्सपेंशन करना है, डेवलपमेंट करना है, तो प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उस एक्सटेंट पे अगर हमको एग्रीकल्चर को इंक्रीज़ करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, फर्टिलाइज़र्स होनी चाहिए, प्रॉपर मैन्योर होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस डिपेंड अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ पावर एंड द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर हमको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस करना है तो वो किस पे डिपेंड करता है कि पावर, कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी कितना ज़्यादा मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कितना हो रहा है। अगर हम गुड्स को क्या कर दिए, प्रोड्यूस तो कर दिए, वो इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो गया, अब हमको उसको क्या करना है, मार्केट तक पहुंचाना है, तो हमको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी चाहिए, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी चाहिए। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस डिपेंड अपॉन दी all these development of the power, electricity generation, transport and communication. So obviously if proper attention is not paid to the development of infrastructure, it is likely to act as a severe constraint on the economic development। यह है कि अगर हम प्रॉपर अटेंशन ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे नहीं देते हैं तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फॉर दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सारे क्या है, एज अ ऑब्स्टिकल हो जाएंगे कि अगर हमको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा तो हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, और ये सारे क्या, ऑल बिकम दी कॉन्स्टेंट, ऑल बिकम दी ऑब्स्टिकल ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा। सो फॉर दैट पर्पस वी शुड हैव दी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। अगर हमको अपनी कंट्री को डेवलप करना है तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होना ही चाहिए। Okay? So you know very well energy from your Indian economic development chapter 8 infrastructure, it has, energy has been deleted from your chapter 8 infrastructure, so we will not discuss the energy topic. Okay, so we will skip it. Okay, so electricity and power is also the part of the energy, so we will also not discuss. So next topic is health. Okay, so in infrastructure facility health is also the one of them है। अब हम इलेक्ट्रिसिटी, पावर और एनर्जी को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग अब नेक्स्ट किस पे है, हेल्थ पे मूव करते हैं। ओके, health means a state of complete physical, mental and social soundness. Health is not only absence of disease but also the ability to realize one's potential. It is a yardstick of one's well-being. Okay, health क्या है, health का simple meaning है, it is the state of complete physical and mental soundness। मतलब अगर आप physically fit नहीं हो तो हम नहीं कह सकते कि आप क्या हो, हेल्दी हो। अगर आप सोशल फिट नहीं हो तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप हेल्दी हो। ओके, सो टू बी अ हेल्दी यू शुड हैव टू बी अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल साउंड। अगर आप फिज़िकली, मेंटली, सोशली क्या हो, फिट हो, तभी आपको हम क्या बोलेंगे कि यू आर हेल्दी। ठीक है, आप क्या है, सोशली भी लोगों से कनेक्टेड नहीं हो। ठीक है, आप सोशली लोगों से कनेक्टेड नहीं होते हो, इस केस में भी हम नहीं बोल सकते कि आप हेल्दी हो, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होगी तभी आप क्या हो, सोसाइटी से दूर हो रहे हो। मे बी इट इज़ फिज़िकली प्रॉब्लम, इट मे बी अ मेंटल प्रॉब्लम। सो हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल साउंडनेस। कि हेल्थ में हम क्या करेंगे, सबको लेंगे, फिज़िकली भी वो साउंड होना चाहिए, मेंटली भी वो मतलब फिट होना चाहिए, एज वेल एज़ वो सोशली भी फिट होना चाहिए।
सो हेल्थ इज़ नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज़। हेल्थ होने का ये मतलब नहीं कि एब्सेंस ऑफ डिजीज़ की आपको कोई डिजीज़ नहीं है, बट ऑल्सो दी एबिलिटी टू रियलाइज़ वंस पोटेंशियल। बट एक ये भी एबिलिटी है कि आप अपनी पोटेंशियल को क्या करें, रियलाइज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम हेल्दी अनहेल्दी उसको भी कह सकते हैं। जैसे हम ये नहीं कि आप एकदम फिज़िकली मेंटली आप क्या हो, सोशल फिट हो, बट आप क्या हो, आपका मतलब डिज़ीज़ आप पे कोई नहीं है। हम ये कहें कि आप फिज़िकली मेंटली और सोशली फ़िट हो, डैट मीन्स आप हेल्दी हो। और हेल्थ का प्रॉपर हेल्थ होने का मतलब ये नहीं कि आपको कोई डिज़ीज़ नहीं है। आपकी इतनी एबिलिटी हो कि आपकी क्या पोटेंशियल है, आप किस में अच्छे हो, आप अपनी पोटेंशियल को क्या कर सको, रियलाइज़ कर। अगर आप अपनी पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सकते हो, सो दैट यू आर हेल्दी। सो इट इज़ अ यार्डस्टिक ऑफ वन वेल्स बीइंग। ठीक है, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड है, एक पैरामीटर है जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं वंस वेल बीइंग कि कोई भी इंडिविजुअल कितना ज़्यादा फिट है। ठीक है, वो कितना ज़्यादा प्रॉपरली वेल है। ठीक है, तो इट इज़ अ यार्डस्टिक। ठीक है, एक ये स्टैंडर्ड है, एक ये पैरामीटर है थ्रू विच वी कैन मेजर द एनी इंडिविजुअल इज़ हाउ मच वेल बीइंग, कि वो कितना ज़्यादा डज। हेल्थ इज़ अ होलिस्टिक process related to the overall growth and development of the nation। ठीक, हेल्थ क्या है, होलिस्टिक मीन्स इट इज़ अ ओवरऑल डेवलपमेंट, मीन्स कि हम पूरे डेवलपमेंट की बात करते हैं। इट मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोसेस है। हेल्थ क्या है, एक ये ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोसेस है रिलेटेड टू ओवरऑल ग्रोथ। इसका मतलब it means we talk about the overall growth and the development of a nation। हम ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ नेशन की बात करेंगे। थ्रू द 20th century has been a global transformation in human health unmatched in history। It may be difficult to define the health status of a nation in terms of single set of measure। okay, तो ये क्या कह रहा है कि through the 20th century has seen a ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, 20th सेंचुरी में क्या देखा गया है कि एक ये ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इन द ह्यूमन हेल्थ, पूरे ह्यूमन हेल्थ में, अनमैच्ड इन द हिस्ट्री। पूरा ये हिस्ट्री से अभी तक मैच नहीं किया है। इट मे बी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ नेशन इन टर्म ऑफ सिंगल सेट ऑफ मेजर, कि ये डिफ़िकल्ट है कि हम किसी के हेल्थ स्टेटस को क्या है, किसी एक सिंगल मेजर के थ्रू ही क्या कर लें, डिफरेंट एक सिंगल सेट ऑफ मेजर के थ्रू ही हम उसको आइडेंटिफाई कर लें कि वो हेल्दी है कि नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, अगर किसी के हेल्थ स्टेटस को जानना है, सो वी शुड गो थ्रू दी ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि हमको उसके ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट को ही पूरे को देखना पड़ेगा। सो हेल्थ ऑफ अ पीपल, it is assessed by the taking into account indicators like infant mortality rate, life expectancy, nutritional levels along with the incidence of communicable and non communicable disease। ठीक है, हम अगर ये कहते हैं कि हम किसी के हेल्थ स्टेटस को किसी एक सिंगल मेजर के थ्रू लेके चलते हैं, इंडिकेटर के थ्रू, कि ये क्या है, हेल्दी है, तो वो पर्सन हेल्दी नहीं हो सकता है। हमें डिफरेंट इंडिकेटर्स को लेना पड़ेगा through which we can measure any person is healthy or not। So health of a people is assessed by taking into account the indicators। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल का अगर हमको हेल्थ की बात करनी है, देखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सारे इंडिकेटर्स को देखना पड़ेगा कि इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, न्यूट्रिशनल लेवल क्या है, कोई भी इंडिविजुअल कितना न्यूट्रिशंस ले रहा है, अलॉन्ग विद दी इंसिडेंस ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, कि कौन से ऐसे डिजीज़ है जो एक दूसरे के कम्युनिकेशन पे आने पे हमको डिजीज़ हो रहे हैं, और कौन से ऐसे डिजीज़ है जो नॉन कम्युनिकेबल है, मतलब हम किसी के कांटेक्ट में आ भी जाएं तो भी हमारे पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल क्या हो गया आपके, जैसे किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल। ऐसा थोड़े हम किसी को टच कर देंगे तो हो जाएगा। जैसे अभी का आपका एक एग्जांपल है वायरल, क्या है, वायरस जो है आपका कोरोना, ये सब क्या है, कम्युनिकेबल है, कि हम कम्युनिकेट किसी से होंगे तो वो डिज़ीज़ स्प्रेड आउट कर सकती है। ओके,
So the government of India has evolved a national health policy which takes into account the preventive and promotive rehabilitative aspects of health. ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाया है जिसमें क्या है कि हम कैसे किसी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उन सारी चीज़ों से ओवरकम कर सकते हैं अगर ये सारी प्रॉब्लम क्या है हेल्थ में आ रही है। तो ये सब कुछ क्या है नेशनल हेल्थ पॉलिसी में गिवन है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। ठीक है, आपको पता है जो भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, मतलब जहाँ पे हम स्किल्स और नॉलेज की बात करते हैं, तो ह्यूमन कैपिटल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। सो हेल्थ इज़ एन इसेंशियल आस्पेक्ट टू मेक ह्यूमन कैपिटल मोर एफिशिएंट। ठीक है, हेल्थ क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि हम ह्यूमन कैपिटल को क्या कर सकते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट कर सकते हैं, ज़्यादा कॉम्पिटेंट कर सकते हैं, मीन्स ज़्यादा उसको कैपेबल और एबल कर सकते हैं, एंड मच मोर ऑफ द इफ़ेक्टिव, और वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हो सकता है। ओके, सो ह्यूमन कैपिटल आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। सो हेल्थ क्या है, हेल्थ इज़ एन इसेंशियल आस्पेक्ट फॉर द human capital because it makes the people more effective, more competent and more capable. Okay, now the next one is health infrastructure. आपको ये पता है कि हेल्थ की हम बात कर लें, अब हेल्थ के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होगा जहाँ पे हम बात करेंगे कि हॉस्पिटल्स हैं, किस टाइप के हॉस्पिटल है, वहाँ पे कैसी कैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। सो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ अ हेल्थ infrastructure ensures a country of healthy manpower of production of goods and services. In recent times, scholars argue that people are entitled to health care facilities. ठीक है, जो डेवलपमेंट है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये क्या इंश्योर करता है, इंश्योर अ कंट्री ऑफ हेल्दी मैन पावर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड कंट्री। ठीक है, अगर प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो जो भी पर्सन है, पीपल हैं कंट्री के, वो भी क्या होंगे, हेल्दी होंगे। और वही क्या है, मैन पावर, प्रॉपर प्रोडक्शन, अगर वो प्रॉपर हेल्दी मैन पावर होगा, अगर कोई भी पर्सन क्या है, कोई भी उसको कोई भी डिजीज़ नहीं होगा तो वो हेल्दी होगा, हेल्दी मैन पावर होगा, और हेल्दी मैन पावर क्या है, प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी कर सकता है। ओके, तो इसलिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इन रिसेंट टाइम स्कॉलर्स आर्ग्यू डैट पीपल आर इंटाइटल्ड टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। ठीक है, पीपल क्या हैं, जो भी डिफरेंट पीपल हैं वो किस में, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में इंटाइटल्ड होते हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द राइट टू हेल्दी लिविंग। ठीक है, अब ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की, कि ये इंश्योर करे कि राइट टू हेल्दी लिविंग, कि अब एक ये भी राइट बना दे कि हेल्दी लिविंग भी एक राइट है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी डिजीज़ से बहुत सफ़र कर रहे हो, क्या है, एक हेल्दी लिविंग भी एक राइट होना चाहिए जिसमें हर एक इंडिविजुअल क्या हो, हेल्दी हो। सो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है आपका, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, नर्स एंड अदर पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जो और बेड्स आ गए कि कितने हॉस्पिटल में बेड्स हैं, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल, जो भी इक्विपमेंट हॉस्पिटल में नीडेड हैं वो कितने हैं, एंड वेल डेवलप्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। वेल मेंटेन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज मीन्स जो इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, मेडिसिन को प्रोड्यूस करती हैं, उनको बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सो इट इज़ ऑल्सो ट्रू डैट mere presence of health infrastructure is not sufficient to have healthy people। यहाँ ये हमें ये भी एकदम ट्रूली पता है कि अभी प्रेजेंट में जो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि पीपल को वो ज़्यादा हेल्दी रख सके। द सेम शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल। अब ये जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है इट शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल। ये प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वो हर एक इंडिविजुअल को एक्सेसिबल होना चाहिए कि वो हर एक लोग उससे रीच आउट करे। सिंस द इनिशियल स्टेज ऑफ प्लान डेवलपमेंट, पॉलिसी मेकर envisage that no individual should fail to secure medical care, curative and preventive because of the unable to pay for it। ठीक है,
जब भी इनिशियल स्टेज था, जब हम लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, तो पॉलिसी मेकर ने यही पॉलिसीज़ को बनाया कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए जिसको क्या है पूरी मेडिकल की फैसिलिटी नहीं मिल पाई, वो उन सारी प्रॉब्लम से, उन सारी डिजीज़ से क्योर नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी टू पे फॉर इट, कि वो इनकैपेबल है और इनेबल है। जैसे जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई प्लान डेवलपमेंट में, डिफरेंट पॉलिसीज़ आती रहती है हेल्थ की, तो उसमें एक ये फोकस लेके चला गया कि ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए जो किसी भी प्रॉब्लम से क्या हो क्योर ना कर पाए, उसे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल जाए क्योंकि वो कैपेबल नहीं है पे करने में। इसलिए चाहे वो कैपेबल हो चाहे ना हो, उसे प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या है मिलनी चाहिए ही चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ इंडियाज़ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ मेड अप ऑफ अ 3-tier सिस्टम। ठीक है, जो भी इंडिया का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो 3 tier का है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड दी टर्शरी हेल्थ केयर और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। So first one is primary health care. It includes identification, prevention and control of prevailing health problem. It also includes promotion of adequate supply of water, food supply and the proper nutrition, maternal and child health care, maternal health, essential drugs, proper of immunization against infectious disease, auxiliary nursing midwife is the first person who provide primary health care in rural areas. To achieve the above, primary health care centers and hospital have been set up in villages and towns which are generally manned by a single doctor, a nurse and limited quantity of medicines. These are known as primary health centers, community health center and the सब सेंटर। ओके, सो इसमें क्या कह रहा है, प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होते हैं, इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, मीन्स कि आइडेंटिफाई, कोई भी डिजीज़ हुई है उसको आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, प्रिवेंट करते हैं उन सारी डिजीज़ को, एंड कंट्रोल ऑफ प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम होती है उसको वो कंट्रोल करते हैं। तो इट इंक्लूड्स प्रमोशन ऑफ एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है कि देयर शुड बी अ एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, जो पानी लोग रूरल एरियाज़ में पीपल को मिल रहा है वो क्या होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्लीन होना चाहिए, एंड फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, और उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिले, फूड सप्लाई भी प्रॉपरली मिले, ऐसा नहीं कि उनके पास खाने को ही ना हो, एंड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, मतलब जो भी मैटरनल मीन्स जो भी कोई भी मदर है या जिसको वो प्रेग्नेंट है उसको भी सारी हेल्थ केयर फैसिलिटी मिले, चाइल्ड हेल्थ केयर हो कि कोई भी चाइल्ड हो उसके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटी हो, मेंटल हेल्थ की फैसिलिटी हो, कोई भी सफ़र कर रहा हो किसी भी मेंटल प्रॉब्लम से, इसेंशियल ड्रग्स भी होने चाहिए, जो भी सारी मेडिसिन हैं वो भी उस हेल्थ केयर में होनी चाहिए, प्रमोशन ऑफ इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज़, जो भी डिफरेंट इम्यून को इंक्रीज़ करने के लिए जो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनके लिए प्रॉपर सारी इंजेक्शन और ये सारी भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ, ये बेसिकली जो विलेज एरिया में होती हैं, ये सारी ऐसी ANM इनको बोलते हैं, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ, ये सारी एक नर्स टाइप की होती हैं जो बेसिकली रूरल एरियाज में फाइंड आउट होती हैं। ये क्या होती है, फर्स्ट पर्सन हु प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में क्या है, ये प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। अगर किसी भी लेडी को प्रेग्नेंट है, उसको बेबी होने वाला है, ये सारी फैसिलिटीज़, अगर किसी को किसी भी टाइप की शॉर्ट लेवल पे, मतलब स्मॉल लेवल पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है कोई भी, तो उनको ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, मेडिसिन लगाना, किसी को कोई चोट लग गई है तो उस पर ये सारा पट्टी करना, ये सारे छोटे छोटे काम ही क्या करती है, मिडवाइफ करती हैं। टू अचीव द अबव, इनको अचीव करने के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स एंड हॉस्पिटल हैव बीन सेटअप इन दी विलेज। ये सारी प्रॉब्लम अगर विलेज एरिया में हों तो क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स और हॉस्पिटल क्या होते हैं, सेटअप होंगे। आपको पता होगा, आप देखे भी होंगे कभी, आप लोग विलेज में जाओ या स्मॉल जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, वहाँ पे क्या होते हैं, प्राइमरी हेल्थ क्या होता है, आप लोग सुनेंगे प्राथमिक चिकित्सा, और ये सब हॉस्पिटल्स क्या होते हैं, ओपन होते हैं
एंड टाउन्स में भी विच आर जनरली मैन्ड बाय द सिंगल डॉक्टर। ये प्रॉपरली क्या होता है, ये मैनेज किसके थ्रू होता है, एक वहाँ पे ही सिंगल डॉक्टर होता है, नर्स होते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन, और लिमिटेड ही क्वांटिटी मेडिसिन की भी होती है। दे आर नोन एज प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। इनको क्या बोलते हैं कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बोलते हैं, ठीक है। एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो भी कम्युनिटी में हेल्थ सेंटर्स होते हैं, एंड सब सेंटर, ठीक है। ये प्राइमरी हेल्थ केयर मीन्स अगर आपकी कोई प्रॉब्लम डिजीज़ क्या है स्मॉल लेवल पे, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं है, तो ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे लोग जाते हैं। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। वी विल कंटिन्यू फर्दर इन दी नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।